Imagine earning 10 LPA, 12 LPA, or even 15 LPA plus and working with companies globally and making decisions that moves crore. Well, if that sounds unreal, then it's not, because that's finance in 2026. Finance is one of the highest paying career fields in the world right now. But most of the students को पता ही नहीं होता है कि इसमें कौन-कौन सी job roles exist करते हैं. उन्हें सिर्फ इतना पता है कि finance में jobs हैं. But what do people exactly do? किस रोल में क्या काम रहता है एंड आपके लिए कौन सा रोल सबसे बेस्ट रहेगा? Well, this is why we have decided to make this video. In this video, I'm going to be telling you top 10 finance roles in 2026. So if you are exploring finance for the first time and confused about the career options, then this video will give you complete clarity. So subscribe to our channel, watch this video till the end and let's get started. Number 1 is investment bankers. Well, investment bankers help companies raise money and close big deals. For example, IPO launch करना या फिर acquisitions handle करना या companies को merge करना. In simple terms, these are the people behind billion-dollar business deals and इनकी salary range around 10 to 30 LPA रहती है. इसमें you directly work on high value transactions, यानी कि टॉप कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है, तुम्हें बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी. सो जितना हाई प्रेशर रहता है ना, रिवॉर्ड भी उतना ही हाई रहता है. सेकेंड इज पोर्टफोलियो मैनेजर. दे मैनेज इन्वेस्टमेंट्स फॉर क्लाइंट्स, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो या फिर इंस्टीट्यूशन. ये डिसाइड करते हैं कि आपको आपका मनी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके हायर रिटर्न्स हो. इसमें यू आर ग्रोइंग समवन एल्सेस मनी, वो भी स्ट्रेटेजिकली. इधर जो सैलरी रेंज रहती है, इट इज फ्रॉम 8 LPA to 20 LPA along with bonuses. बिकॉज इसमें ना परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मनी. तो अगर आप अपने क्लाइंट के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करते हो तो यू ऑल्सो अर्न बिग. थर्ड इज फाइनेंशियल एनालिस्ट. They analyze companies' data, financial statements and trends to help businesses make better decisions. Simple terms में companies को बताना कि profit कैसे increase होगा and cost कैसे reduce होगी. अगर salary की बात करो तो it ranges from 6 to 15 LPA. हर कंपनी को data driven decisions चाहिए, इसीलिए इनकी डिमांड काफी ज्यादा हाई रहती है. Fourth is equity research analyst. They study companies and stock markets deeply to give buy and sell recommendations. ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए. अगर सैलरी रेंज की बात करूं तो इट्स फ्रॉम 7 to 20 LPA. बिकॉज इन्वेस्टर्स रिलाई करते हैं इनकी रिसर्च पे टू इन्वेस्ट इन करोर्स. फिफ्थ इज रिस्क मैनेजर. दे बेसिकली आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, फिर चाहे वो फाइनेंशियल हो, मार्केट हो या ऑपरेशनल हो. तो ये आपको बताते हैं कि कैसे रिस्क को रिड्यूस करना चाहिए. ये हेल्प करते हैं कंपनीज को लॉसेस से बचाने के लिए. तो इनकी जो सैलरी रेंज होती है, इट्स फ्रॉम 10 LPA to 20 LPA. बिकॉज ऑब्वियसली सेविंग मनी is as important as earning money. Sixth is wealth manager. They help individuals manage wealth, yani investments, taxes and retirement planning. In this, you smartly grow people's money. अगर सैलरी की बात करो तो it ranges from 5 to 15 LPA plus incentives. और अगर आपका क्लाइंट बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपके मनी और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है. Seventh is corporate finance manager. They handle a company's internal finances, यानी कि इन्वेस्टिंग, प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग. बेसिकली कंपनी का पैसा कहाँ यूज होगा ये आप लोग डिसाइड करते हो. तो इनकी सैलरी जो है वो 12 to 25 LPA अराउंड रहती है. ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज ऑफ बिग कंपनीज. Eighth is data analyst in finance. They use tools like Excel, Power BI, Tableau, SQL to analyze financial data. Numbers को insights में convert करना, dashboards बनाना, represent करना, ये सब आपका काम रहेगा. अगर salary range की बात करूँ तो 6 to 18 LPA रहती है. Because company today run on data and यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है somebody who can analyze all that data. Ninth is credit analyst. ये analyze करते हैं whether a company or a person is eligible for loans or not. बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि लोन देना सेफ है या फिर रिस्की. तो जितने भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, दे रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल. अगर सैलरी की बात करूँ तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 8 LPA एंड गो अप टू 16 LPA एज वेल. 10th इज फिनटेक स्पेशलिस्ट. दे बेसिकली वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. तो जितने भी डिजिटल पेमेंट्स, AI, ब्लॉकचेन सिस्टम्स, ये सब उनका यूज करते हैं. तो बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंस को और ज्यादा स्मार्टर एंड क्विकर बनाना. इनकी सैलरी की बात करूँ तो इट्स 8 to 20 LPA, मतलब अराउंड इतना ही रहता है. बिकॉज फाइनेंस इज बिकमिंग डिजिटल. अब आजकल हर चीज ऑनलाइन होती है, UPI से लेके पेमेंट्स, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू यू एक्चुअली गेट दीज रोल्स. बिकॉज इन 2026 डिग्री अलोन इजंट इनफ. तो आपको स्किल्स के साथ स्पेशलाइजेशन भी आनी चाहिए. ऑप्शन 1 इज यू कैन डू प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज CFA, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. तो अगर आपको कोर फाइनेंस रोल्स में ही जाना है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, तो ये पर्टिकुलर कोर्स आपको क्रेडिबिलिटी भी देता है और ग्लोबल रिकॉग्निशन भी देगा. तो बाकी के कंपैरिजन में आप बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होते हो.
सेकेंड ऑप्शन इज गो फॉर नेक्स्ट CFO, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखो अब आप इतने सारे जो मैंने आपको जॉब रोल्स बताए इन सब में टाइम इन्वेस्ट करोगे, यू विल गेट एक्सपीरियंस एज वेल। वंस यू हैव एक्सपीरियंस तो आपका जो होता है ना टॉप लेवल दैट इज फाइनेंस का, दैट इज CFO, जो कि होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगर आपको उस लेवल पे जाना है देन यू नीड टू हैव ऑल दो स्किल्स जो रिक्वायर्ड है उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, एंड दैट इज व्हाई नेक्स्ट CFO कोर्स में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं सो दैट यू रीच द पीक लेवल एट दैट पॉइंट। थर्ड ऑप्शन है स्किल बेस्ड रूट। तो अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ नहीं जाना है देन यू कैन गो फॉर एडवांस एक्सेल, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, इन सभी में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दीज आर जॉब रेडी स्किल्स जो कि डायरेक्टली कंपनीज यूज करती हैं। अगर आपको ये सारी स्किल्स आती होंगी, आपने ये कोर्सेज कर रखे होंगे, देन यू कैन गेट अ हाई पेइंग जॉब एट अ टॉप MNC। सो दीज वर द टॉप 10 फाइनेंस रोल्स इन 2026। अब आपको नाम तो पता ही है, साथ साथ ये भी पता है कि इनमें क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप कैसे रीच कर सकते हो कोर्सेज एंड स्किल्स सीख के। सो इफ यू वांट टू डू एनी ऑफ दीज कोर्सेज जो कि मैंने आज की वीडियो में डिस्क्राइब करे हैं, देन ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप चेक कर सकते हो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको कौन सा जॉब रोल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ताकि उसका कंप्लीट रोड मैप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। ठीक है, टिल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट में जरूर बताना।